जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स. Welcome to all of you at my channel Ganit Ki Chopal. In my previous video, we have learnt about the natural number, whole number, integers and rational number. Now we are going to start our first exercise of class 9th mathematics. Okay student, the first question of exercise 1.1. Is 0 a rational number? First question. Is 0 a rational number? Answer. Yes. Yes. 0 is a rational number. Next one. Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? Second answer, yes, we can write it. Yes, we can write it in the form of p by q as 0 by 1, where q is not equal to 0, p and q both are integers. Then we can write it. Every natural number, whole number and integers, all of these numbers are rational number because we can write it by 1. For example, -3, we can write it -3 by 1. So it is a rational number. So our first question is completed. Friends, next question is question number 2 of exercise 1.1. Find 6 rational numbers between 3 and 4. Find 6 rational number between 3 and 4. Okay. There are millions number, or we can say there are millions rational number between two numbers. Millions. But यहाँ पर हमें केवल 6 रेशनल नंबर्स की बात की गई है, लेकिन हम मिलियंस नंबर निकाल सकते हैं. अब आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं और उसके बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स पूछे जाए हम निकाल सकते हैं. इसकी 2 सिचुएशंस होती हैं या 2 टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो आपको देखना होगी. फर्स्ट, इनके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स. तो जब 6 रेशनल नंबर्स पूछे जाते हैं तब जो गिवन नंबर है उनके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो हम 3 and 4 को लिख सकते हैं 3 by 1 and 4 by 1. ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. इसके बाद जितने नंबर्स हमसे पूछे जाते हैं 2 नंबर के बीच में, उसको +1 करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, हमसे पूछे गए हैं 6 नंबर, तो आपको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है 6 + 1. हमेशा n + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7 मीन्स 6 + 1 = 7. हमेशा 6 + 1. क्यों 6 पूछा है तो 6 + 1. अगर आपसे 20 नंबर्स पूछते हैं तो 20 + 1 मीन्स 21 से मल्टीप्लाई कीजिए. अगर आपसे पूछा जाता है 100 नंबर्स फाइंड आउट कीजिए तो 100 + 1 101 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. ओके, 3 by 1 मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7 एंड 4 by 1 मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7. अगर किसी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर की वैल्यू पर कोई अफेक्ट नहीं होता है, वैल्यू सेम बनी रहती है. देन वी गेट 7 3 = 21 by 7 and 4 7 = 28 by 7. Okay, then we get so many numbers between 21 and 28. So between 21 and 28 we have 22 by 7, 23 by 7,
24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So the numbers between 21 and 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27/7. Then we get 6 rational number between these and these. So these are 6 rational number between 3 and 4. We can find out more than 6. As like if you find out 101 rational number between 3 and 4, then you will multiply by 101 plus 1 means 102 numerator and denominator. Then we get so many numbers between two given number. Okay, next question. Question number 3. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. 5 rational number between 3/5 and 4/5. Process is same. Check first the denominator is same of both number. So denominator is same. Okay, no problem. Next one, multiplying numerator and denominator by +1, n plus 1 number. N means we have find out 5 rational numbers means 5 plus 1. So we can write here multiplying numerator and denominator by 5 plus 1 is equal to 6. Always n plus 1, जितना नंबर पूछा जाए उससे 1 मोर. ओके, तो न्यूमरेटर and denominator multiplying by 6 and numerator and denominator is multiplying by 6. अगर आपसे 16 पूछता है तो आप 16 plus 1 17 से मल्टीप्लाई कीजिए. 3 6 जा 18 by 30 and 4 6 जा 24 by 30. Between 18 and 24, how many natural numbers? So, okay, 18 to 24 means 19 by 30. 18 to 24, 19, 20, 21, 22 by 30. Okay. 19, 20, 21, 22 and 23. 1, 2, 3, 4, 5. Then 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. अब by the way, डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करें? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह से हो 3/4 एंड 4/3. पहले आपको डिनोमिनेटर सेम कर लेना चाहिए. इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9/12 एंड इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दोनों में 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12. देन वी गेट सेम डिनोमिनेटर. आफ्टर देन वी विल मल्टीप्लाई n plus 1. तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. गिव रीजन फॉर योर आंसर. मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें से आप आसानी से इसके रिजल्ट निकाल पाएंगे. लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. तो जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डिजिट एंड होल नंबर्स जो हैं 0 1 2 3 4 5 डिजिट. तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर. इट इज ट्रू. ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो होल नंबर ना हो. ओके, गुड. बट अपोजिट इज रॉन्ग. एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर? नो. एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर? नो, बिकॉज 0 इज होल नंबर बट इट इज नॉट नेचुरल. अपोजिट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी इंटीजर इज होल नंबर. तो एवरी इंटीजर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डिजिट. एवरी इंटीजर इज होल नंबर? नो.
every integer is not whole number because negative numbers -4, -3, -2, -1 they are not whole numbers. So every integer is whole number, it is wrong. But when asked every whole number is integers, it is true. Opposite पूछा जा सकता है. Next number, every rational number is a whole number. Rational number 1/2, 3/4 and 0, 1, -2, all of these rational number. Every rational number is whole number. 1/2 is a rational, but it is not whole number. It is not whole number. It is denoted by Q, rational number. 1/2 is rational, but it is not whole number. अब मैंने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट सिस्टम में नेचुरल नंबर, फिर है होल नंबर, फिर आपके इंटीजर्स, फिर है रेशनल नंबर. तो ऊपर से आप डाउनवर्ड आते हैं तो ये आंसर यस आता है, और डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं तो आंसर नो आता है. फॉर एग्जांपल, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस ट्रू. एवरी होल नंबर इज इंटीजर, ट्रू. एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर, ट्रू. अपोजिट जाएंगे डाउनवर्ड से अपवर्ड, नो. एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, नो. एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नो. एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो. क्वेश्चंस का फॉर्मेशन से एग्जाम में बदल सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो फॉर्मेशन चेंज करने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब इसके बाद हम समझेंगे इरेशनल नंबर. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए. व्हाट इज इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स को समझने से पहले आपको रेशनल नंबर्स को बहुत अच्छे से समझना होगा. पहले हम रेशनल को फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ करते हैं. आपको पहले मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर से आप देखें तो द नंबर्स विच आर एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p and q both are integers. p and q both are integers. This is rational number. For example, 1/2, 1/3, 7/3, 11/7, -1, -2. These all of the example of rational number. रेशनल नंबर में एक ऑप्शन होता है कि हम रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन जब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/2. 1/2 मीन्स 1 is divisible by 2, तो 0.5 मीन्स 1/2 का जो डेसिमल एक्सपांशन है 0.5, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है 0 आता है. तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. डेसिमल एक्सपांशन. लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देखें. 11/7, 11/7, 7 1 जा 7, 4 डेसिमल 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2, 7 2 जा 14, 6, 56, 7 8 जा 56, then we get 4, again we get 4 means 40 again. So repeating, हम यहाँ पर देखते हैं कि रिमाइंडर रिपीट हो गया, 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर रिपीट हुआ. तो जब रिमाइंडर 0 ना हो और रिपीट हो तब जो डेसिमल एक्सपांशन होगा, तो 11/7 का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा 1.5711428, और यहाँ से फिर 7 5 या 35, फिर यही सीरीज आ जाएगी. इसलिए हम इसको पूरे पर एक बार लगा देते हैं और इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक. एंड सच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग recurring
डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। और जो रेशनल नंबर्स है उसका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। कई बार डेसिमल एक्सपांशन में हम डिवीजन करते जाते हैं और हमारा आंसर नहीं आता। तो मैंने आपसे कल भी कहा था, प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जैसे मैं यहाँ 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 से ज़्यादा स्टेप यूज़ नहीं करना पड़ेगी, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप मैक्सिमम, इसमें आपका रिजल्ट आ गया। तो रेशनल नंबर जो p बाय क्यू के फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स है, उसका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसके अलावा कोई थर्ड डेसिमल एक्सपांशन नहीं होगा रेशनल नंबर्स का। लेकिन हमारे पास कुछ नंबर्स और हैं जिनका जब हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो ना तो वो टर्मिनेटिंग आता है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल √2। जब आप √2 का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं, मेथड अलग हो सकती है, डिवीजन मेथड अलग है, लेकिन है तो डेसिमल एक्सपांशन। तो जब आप √2 का डेसिमल एक्सपांशन निकालते हैं तो आप फाइंड आउट करते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है ना तो 0 आता है और ना ही रिपीट होता है। 7/11 का रिमाइंडर 0 तो नहीं आया लेकिन रिपीट हो गया, ये रिमाइंडर रिपीट हो गया। लेकिन √2 का जब मैं डेसिमल एक्सपांशन करता हूँ तो इसका डेसिमल एक्सपांशन में रिमाइंडर ना तो 0 आता है और ना ही रिपीट होता है। तो सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो द नंबर्स विच कैन नॉट एक्सप्लेन in the form of terminating decimal expansion and non-terminating recurring decimal expansion. It can be explained only in the form of non-terminating, non-recurring decimal expansion. They are called irrational numbers. irrational numbers की पहचान हम डेसिमल एक्सपांशन के बिहाफ पर ही कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी इसी बिहाफ पर दे सकते हैं। The numbers which cannot express in the form of terminating decimal expansion and non-terminating decimal expansion, it can be expressed only in the form of non-terminating, non-recurring decimal expansion. For example, √2, √3, but √4 is not irrational, it is rational. Why? √4, 4 2 2s are 4 and remainder become 0. इस लॉन्ग डिवीजन मेथड्स में भी रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए √4 इज नॉट इरेशनल, इट इज रेशनल. इट मीन्स एवरी कंप्लीट स्क्वायर नंबर is rational. √16, √9, √25, √36, they are rational. But √2 irrational, √3 irrational, √5 irrational, √6 irrational. They are irrational number. Why? क्योंकि जब हम उसका डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो वे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, मीन्स रिमाइंडर ना तो 0 होता है और ना ही रिपीट होता है, हर बार नया रिमाइंडर आ जाता है. पाई आल्सो इरेशनल नंबर. पाई आल्सो इरेशनल नंबर क्योंकि पाई को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका भी जो वैल्यू आती है डेसिमल के बाद वो रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनाती, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनता है. आप कहते हैं सर पाई इज इक्वल टू 22/7, इट इज रेशनल बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ p by q, q is not equal to 0, p and q both are integers, so it is rational. No, pi is actually irrational. 22/7 it is approximate value, not perfect value. 22/7 is approximate value of pi. It helps to solution only, for purpose of solution. 22/7. लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं है.
ये तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं जिससे हमारे सॉल्यूशन को हेल्प मिलती है। इसलिए पाई इज़ नॉट रेशनल, इट इज़ इरेशनल। जब हम पाई की वैल्यूज़ को आपकी बुक में देखते हैं तो बहुत लंबी वैल्यू आती है डेसिमल के बाद, और उसमें रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं आता है। डेसिमल के बाद जब हम उसका डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो रिमाइंडर ना तो रिपीट होता है और ना ही जीरो होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो हमने इरेशनल किसको कहा, तो हमने रेशनल जो नंबर्स है वो पी बाई क्यू फॉर्म में है, उनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मीन्स रिमाइंडर जीरो भी नहीं होता है और रिपीट होता है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं √2, √3, √5 सोन, जिनका हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो वे उनका जो डेसिमल एक्सपांशन में रिमाइंडर, हम रिमाइंडर से चलते हैं, ना तो जीरो होता है ना ही रिपीट होता है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। सो जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है वही इरेशनल नंबर है। यही डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स की। √4 को अगर हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है, इसलिए √4 इरेशनल नहीं है, वो रेशनल है। तो इस तरह से हमने इरेशनल नंबर्स को समझा। अब इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व। आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं जो CBSE स्कूल और अदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हैं वो उनको लगातार मेरे वीडियोस प्राप्त करते रहे। पूरे समर वेकेशंस में मेरे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।